So last time we had a bit of something called unitary operators. Unitary operators सुना है आपने, है ना? या Hermitian operators you have heard. तो unitary operators में simply है u अगर u is equal to 1 or u is equal to u inverse. So this is a maybe this taking this as a fundamental property. So because we have to जो हमारे पास Hermitian operators हैं, Hermitian operators. So they have we have been studying Hermitian operators, but we are also interested in unitary operators. They are that much important. और इसका हम कहते हैं sometimes displacement operator also. So हमारे पास ये है कि so unitary operators will take a state psi. Psi जो हमारे पास है wave function जो हमारे पास psi of RT is exponential of जो time independent Schrödinger equation में हमने psi का है ना जैसे so it's the evolution of wave function. It's the Hamiltonian. Hamiltonian is total energy of the system. जो स्टेट साइ है how इसका evolution कैसा होगा स्पेस टाइम में. और हमारे पास जो यूनिटरी ऑपरेटर है या हर्मिटियन ऑपरेटर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं तो हर्मिटियन ऑपरेटर्स have an important role. In the same sense we are interested in saying that how a state translates into another equivalent state. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना फिजिक्स में मैकेनिक्स में कहते हैं ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट या रोटेशनली इनवेरिएंट है ना. सो इफ यू हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x to x plus डेल्टा प्राइम इट्स इक्वल टू psi of x. कुछ अगर हम कोई करेंगे इफ इट्स ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट है ना, ये x इज इक्वल टू x माइनस bt है ना. So it will not fundamental law चेंज नहीं हो जाएगा. ठीक है, इन द सेम एक रोटेशनल सिमेट्री होती है, एक ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है, वहां से हम वी कैन अराइव एट ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस एंड रोटेशनल इनवेरिएंस. ठीक है, या हम सिमेट्री इन दो डायरेक्शन ऑफ टाइम मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्लस फाइन से फर्क नहीं पड़ेगा. इन द सेम वे व्हेन वी आर गोइंग टू ऑपरेटर्स दिस हर्मिटियन ऑपरेटर्स एट द एंड we describe them in terms of some observable which is going to have some measurement. In the same way we are interested in some operators which we define unitary operators which transform वहाँ क्लासिकल स्टेट्स था, यहाँ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स है. क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स describing equivalent physical situations to each other. ठीक है, describing equivalent physical situations to each other. So this is how we define unitary transformations or unitary operator. अब for example हम कहते हैं unitary operator preserves norm. Norm क्या हो गया, जैसे a dagger a है ना, psi star psi is equal to 1 है ना. In the same way we can say integral of if there is a unitary operator this u of psi of और स्टार हम कहते हैं जैसे psi star is equal to 1. ठीक है, so if it's a Hermitian operator की भी यही प्रॉपर्टी होती है.
ठीक है. In the same way, we are trying to say that it will preserve norm such that u, which is operating on this psi star psi, u of psi of r should be equivalent to psi star r psi. If it's position space, it will be d3r, है ना. अब देखो u dagger u is equivalent to u star u, ऐसे यहाँ से u star u is equivalent to 1, u dagger is 1, or u is equivalent to u inverse also. This is the property of unitary matrix. So so a unitary operator जो होगा, unitary operator it preserves inner Hermitian scalar product, ठीक है, of any two states, such that अब यहां पर you can also write it like u psi 1 r star u psi 2 r, ठीक है. तो यहां हमने सिर्फ psi लिखा, बट यहां हमने लिखा फॉर एनी टू स्टेट्स psi 1 r एंड psi 2 r, ठीक है. यहां psi एंड psi, so we are not starting with a given state, but any two states जिस पर ये operators are going to act, whether u operates on psi 1 or u operates on psi 2. So it should give us psi 1 star r and psi 2 star. यहां पर हमने पिछली बार कहा था psi 1 is equal to psi 2, तो हमारे पास दो कंडीशंस आती है, ऑर्थोनॉर्मेलिटी एंड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस थी, ठीक है. सो तो स्टेट्स में भी ऑर्थोगोनल और दे में भी ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है. अब हमारे पास इन specific way how if we want to like for example if you see the exercise 4.11 of the book, वो कह रहा है कि let psi 1 is equal to c1 psi 1 plus c2 psi 2. c1 c2 are the expansion coefficients or the coefficients. So हम क्या कहेंगे, prove that from this equation 4.6667. So from this what he says you have to prove this from this, ठीक है. You have to prove this from this. तो अब इसमें सिर्फ स्टेट्स का फर्क है, यहाँ एक गिवन स्टेट है, यहाँ एनी टू स्टेट्स, ठीक है. अब एनी टू स्टेट्स में भी द कंडीशंस ऑफ ऑर्थोनॉर्मेलिटी एंड ऑर्थोगोनैलिटी विल कम अप. इफ psi 1 is equal to psi 2, if psi 1 is not equal to psi 2, तो डेल्टा p क्यों आएगा, p is equal to q or p not equal to q. In the first case it will be 1, in the second case if the state is orthogonal it will cancel, ठीक है. तो what we are going to do, हाँ ठीक है. So again you might have heard something called adjoint operator, है ना. adjoint operator की भी Hermitian operator, adjoint operator, unitary operator, ठीक है. they come in the same league. So basically they come from the properties of matrices, ठीक है. Product of two matrices may be one unit matrices. तो हम क्या करेंगे काम, जो हमारे पास एडजॉइंट ऑपरेटर और हेर्मिशियन ऑपरेटर, इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास है साइमन स्टार आर, ये साइमन स्टार आर यू ऑफ साई 2 और d3 r is equal to psi 1 star or psi 2 star और d3r. अब हमारे पास जो यूनिटरी ऑपरेटर है यहाँ पर u dagger is equal to
if एक होगा u dagger, the other is u dagger, u is equal to 1. So if you flip in the position, it will not, the properties will not change. ठीक है? So it becomes important because sometimes u will operate on u, अगर ये यहाँ पर होगा, either u dagger will operate or u will operate. It doesn't matter whether u will operate or u dagger will operate. So the property will remain same. तो अब हम अपने आएंगे कि whether it's orthonormal condition or it's orthogonal condition. Psi 1 is equal to psi 2 if psi 1 is not equal to psi 2. If psi 1 is equal to psi 2, then what? We have orthonormal eigenfunctions. है ना? psi 1 is equal to psi 2. So orthonormal और psi 1 is equal to psi 2 हो गया orthonormal. ठीक है? psi 1 not equal to psi 2 है cos of 90, cos of 90, तो 0 आएगा, 1 आएगा, and if it's 90 then it will be orthogonal. Those states will not contribute. So जो हमारे पास ये function होगी psi 1 star psi 2, so it will come out to be 1. It will come out to be आएगा ना 1. If psi 1 star is equal to psi 2, तो psi star is equal to psi square, that will be 1. So those will be orthonormal state rather than orthogonal states, है ना? And orthonormal states may be they are linearly independent rather than linearly dependent. ठीक है? So if it is that way, then हमारे पास जो आएगा so you can also write it like this: u psi star, इसको यहां लाएंगे या इसको ऐसे करेंगे, u psi 2 d3r is equal to, so psi 1 it will u1 u dagger is equal to u dagger u, इसको we flip it, so it will be basically u1 star u2 star psi 1 star psi 2 so d3r. So it will be psi 1 psi 2 star, if psi 1 is equal to psi 2, it will be 1, it will be 1. ठीक है? अगर ये 1 है तो क्या करेंगे हम काम? इसको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे. सो 1 माइनस u1 स्टार u2 इंटीग्रल ऑफ psi 1 स्टार psi 2 d3r is equal to 0. Again, it's further. So again, psi 1 star psi 2. Again further. एक तो था general psi 1 is equal to psi 2. The other is psi 1 is not equal to psi 2. So again, from this condition, you can say we can say that आइगन वैल्यूज, हमने कहा था पिछली बार आइगन स्टेट्स कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यूज. 2 or more आइगन स्टेट्स may correspond to given आइगन वैल्यू. अब जो 2 or more states may be orthogonal or they may be orthonormal, they will correspond to a given आइगन वैल्यू. ठीक है? अब 2 or more states which are orthogonal, तो वो 0 आएगा. ठीक है? There may not be one orthogonal states. There may be many orthogonal states which will correspond to given unique value. ठीक है? So that we will follow from this that there may not be one states. There may be many orthogonal states which will correspond to value 0. That's it. Otherwise, psi 1 star is equal to psi 2 means psi star is equal to
1. You can interpret it from this way. तो अब हम if we want to write uj prime in terms of कोई ऐसे लिखेंगे इसका फॉर्म, अगर अल्फा j इज रियल, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे जिस यूनिटरी ऑपरेटर का फॉर्म हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा अल्फा j वेयर अल्फा j इज रियल. Again, the point which I want to emphasize, which Hermitian operators linearly, so they may be linearly independent. Fine. अब हमारे पास जो अपना वाला आया था, जो when we started the class, जिस तरह हमारे पास rotational symmetry है या translational symmetry है, we have some arbitrary displacement. It will not leave things rotationally, still things will be rotationally invariant or translationally invariant. अब यूनिटरी ऑपरेटर में अगर हम थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इट शुड नॉट चेंज द नेचर ऑफ द फंक्शन, ठीक है. तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर है, यूनिटरी ऑपरेटर इज डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसलेशन ऑपरेटर. यूनिटरी ऑपरेटर को हम डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं. ऑपरेटर ऑफ द फॉर्म ऐसे, which is defined by the action of the wave function psi that displacement operator or unitary operator acting on this x minus zeta. It's psi x minus या x plus zeta जो भी है, या x plus 2 zeta जो भी है. So it will not matter अगर displacement यहाँ की थोड़ा सा some plus or minus करेंगे, it should not if unitary operator acting on this state, this unitary operator acting on this state psi will give psi of x or psi of x minus zeta, ठीक है. So that's the point which we are trying to say. And successive application of, अगर हम एक unitary operator नहीं लेंगे, we are taking two unitary operators such that d zeta d neta psi of x will be equivalent to psi of, अब हमारे जीटा और नीटा हो गया, अब दो आ गया x माइनस जीटा माइनस नीटा, ठीक है. सो वी आर अप्लाइंग टू यूनिटरी ऑपरेटर्स. तो ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास अब नीटा भी, ठीक है. सो इट शुड नॉट मैटर इफ हम कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जैसे है ना d ऑफ dx, x क्या आएगा 1, d ऑफ dx ऑफ x प्लस 2 क्या आएगा. In that sense you can see it. So you can see it, अगर हम दो constant रखेंगे, so it will not change. So this we can write so we can write अगर हमारे पास property of d zeta दो unitary operators, so if we change their place, इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है. d नीटा d zeta, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी ऑपरेटर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में. दैट्स फाइन. अब अगर हमारे पास d0 है i, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड यूनिटरी ऑपरेटर में हमारे पास प्रॉपर्टी होती है d zeta इनवर्स इज इक्वल टू d zeta, है ना. हमने कहा था ना u डैगर u इज इक्वल टू 1 और u इज इक्वल टू 1 और u इज इक्वल टू u इनवर्स, है ना. इट्स अ प्रॉपर्टी. सो इफ इट्स अ यूनिटरी ऑपरेटर ये, तो यू कैन से d zeta इनवर्स इज इक्वल टू d zeta, एंड फ्रॉम दिस अगर एक ही लेंगे d zeta inverse d zeta, if d zeta is a unitary operator, it's d naught is equal to 1. अब ये कह रहा है कि it has the property of closure. closure किसको कहते हैं, जैसे आप ग्रुप डिफाइन करते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड अदर प्रॉपर्टीज, इट सेटिस्फाइज. लाइक अगर हम if we change the order
ऐसे ये इसको यहां लाएंगे, इसको यहां लाएंगे, इट डजंट मैटर। ठीक है। सो अगर आप ग्राफिकली इसी को हम कहते हैं समटाइम्स एबिलियन ग्रुप भी ऑल्सो व्हेन यू स्टडी ग्रुप्स में एक ग्रुप होता है एबिलियन, एक होता है नॉन एबिलियन। एबिलियन में होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए बी इज इक्वल टू, so these operators, unitary operators, have a sort of abelian group की property which set a sort of a closure property में आती है, and it have also a sort of associative property, उससे एक closure property होती है। So if we graphically अगर हम इसको saying how two unitary operators, कोई भी function wave function psi है ऐसे psi x, तो under unitary operator इसका evolution ऐसे आएगा psi of x minus zeta d zeta psi of x, है ना। इसी में होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, बट इट विल डिस्प्लेस ए बिट। psi फंक्शन, अगर psi फंक्शन ये है ना स्टेट अंडर यूनिटरी ऑपरेटर, इट्स psi of ये वाला है psi of x माइनस, तो इसी में हो गया ये डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर ऑपरेटर। यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये जीटा है, साइज दैट psi of x is equal to d zeta psi of x, psi of x minus zeta, है ना। दिस इज फाइन। एंड अगेन अगर हम एक्सपोनेंशियल, अगर हम इसको हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the power iota x, है ना। इसका आप अगर एक्सपेंड करोगे इट विल 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर ये माइनस में है तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। यूनिटरी ऑपरेटर की फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अप्रोक्सीमेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एप्सिलॉन के, वेयर के को हम कहेंगे के इज ए हर्मिटियन ऑपरेटर टू एंश्योर यूनिटैरिटी। के को हम, के इज बेसिकली वो डी जीटा हमारा ये, ठीक है। जो ये है ना, ये इसका एक्सपोनेंशियल निकालेंगे ना, 1 प्लस कुछ प्लस कुछ प्लस कुछ, बट इट्स बीइंग ऑपरेटेड अपॉन बाय यूनिटरी ऑपरेटर। तो फर्स्ट टर्म आएगा ना 1 तो अपना आएगा, एप्सिलॉन रखो आप इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन एवरीथिंग, के इज बेसिकली डी जीटा, है ना। तो यू कैन ऑल्सो राइट फॉर इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस यूनिटरी ऑपरेटर और हर्मिटियन ऑपरेटर का फॉर्म, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो इफ यू गो टू द बुक, तो हमारे पास we have 5-6 minutes, so if you see to the book, तो ये कह रहा है कि एक्सरसाइज 4.12 ये कह रहा है कि prove that if d zeta is to be unitary, then what? It's necessary to be Hermitian. It is necessary to be Hermitian. Even though आप देखना, आप Hermitian property हम we are using quantum mechanics, ठीक है, the way we have defined things thing. अब हमने अलग से यूनिटरी ऑपरेटर को डिफाइन किया, ठीक है। अब यूनिटरी ऑपरेटर की कोई प्रॉपर्टी हमने दिखाई, ये डिस्प्लेसमेंट है, इट्स इक्वल टू दिस। अब द एक्सरसाइज बिकम्स वी हैव टू शो यूनिटरी ऑपरेटर्स आर बेसिकली कैन शो दैट इट्स नेसेसरी के बी ए हर्मिटियन। के मींस ये वाला, इट्स एन हर्मिटियन, ठीक है, इन द सेंस दैट्स इट। सो अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू, जो हमने यहां पर किया था, डी ऑफ जीटा इज इक्वल टू डी जी ऑफ इसके बराबर, तो ये तो दो ऑपरेटर्स के लिए है। फॉर आर्बिट्री डिस्प्लेसमेंट जीटा विद अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन, वी कैन राइट डी ऑफ
zeta plus epsilon d of epsilon इज इक्वल टू डी ऑफ जीटा। जो एप्सिलॉन हमारे है ना, हमने ये है ना कम्युनिटी दिए ऑपरेटर्स डी जीटा डी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने लिखा पिछले बार। अब हम इसमें एक जो हर्मिशन ऑपरेटर है ना डी एप्सिलॉन, इसको हम अगर इसका हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा, साई को लिखा था हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा दिस, सो वो डेफिनेशन लेते हुए इसकी फर्स्ट ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरे ऑपरेटर के बदले हम लिखेंगे डी ऑफ एप्सिलॉन, इन्फिनिटेसिमल ऑपरेटर, इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टर्म्स लेंगे, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 माइनस आयोटा एप्सिलॉन की। Your K is Hermitian. Yes, K is Hermitian. So we want to see Hermitian and unitary operators are more or less same. So from this we can infer a differential equation. अगर इसका differential equation लेंगे, unitary operators का infinitesimal transformation, अगर limiting value लेंगे, epsilon tends to 0, ये क्या आएगा शाबाश? It will epsilon minus d of epsilon is basically minus iota d zeta epsilon, d zeta epsilon k है ना। अब d zeta by d epsilon क्या आएगा यहाँ पर? इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? अगर इसका इन्फिनिटेसिमल वैल्यू लेंगे है ना, zeta प्लस epsilon माइनस zeta टेंड्स टू epsilon टेंड्स टू, ये हो गया इसका डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल रेशियो जिसको हम कहते हैं, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। मगर अगर यहाँ इसको डी जीटा बाई डी जीटा यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ पर, तो इसका आएगा आयोटा डी बाहर निकलेगा, ये एप्सिलॉन और इसका ये आएगा, इट विल बी दिस थिंग। अब ये है कि अगेन फॉर d0 फॉर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन d0 इज इक्वल टू I, फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, है ना। फॉर d0 फॉर यूनिटी I, तो ये कांस्टेंट आएगा, इट विल बी सॉर्ट ऑफ इट विल बी 0, क्योंकि e टू द पावर 0 क्या आएगा? 1। सो फॉर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन d0 इज इक्वल टू I, so it will be zeta will be 0. Has the solution such that d zeta is equal to e to the power minus iota k zeta. अब इसका हम we are going to take different orders in the expansion here. For example, d zeta psi of x will be equal to psi of x minus zeta. तो पहली टर्म लेंगे, सो वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट, सो पहली टर्म psi of x, फिर सेकंड टर्म 1 फैक्टोरियल psi प्राइम x, फिर psi स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल psi डबल x, इसका psi क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, psi ट्रिपल x, so on and so forth. So you are going to see its so that will be in the right hand side equivalent to exponential of minus zeta d by dx of psi of x. हाँ, दिस इज दिस, यहाँ पर ये आएगा राइट हैंड साइड में, ये डी जीटा है। डी जीटा को हमने डिफाइन किया था अपने हिसाब से, हाँ, डी जीटा ऑपरेटिंग ऑन दिस, सो यू कैन हैव psi x का अंडर ये टेलर एक्सपेंशन क्या फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स लेंगे, पहली कुछ टर्म्स लेंगे, इट कैन बी लाइक दैट वेयर इट हैज बीन सीन इन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, k का वैल्यू आएगा हमारे पास आयोटा d by dx. सो इफ यू रिमेंबर जो मोमेंटम ऑपरेटर हमने डिफाइन किया था,
मोमेंटम ऑपरेटर हमने डिफाइन किया था ऐसे, हाँ, पी एक्स को हमने ऐसे ही डिफाइन किया था, है ना. सो यू कैन से दैट दिस, if it comes into this, so it is a momentum operator is somehow generator of these infinitesimal transformations. You can infer from this. ठीक है, you can infer from this. साथ दैट हमारे पास k of f of x will be equivalent to d of fx by x. अब हमारे पास ये है कि satisfied by the eigen functions, eigen function हमने ऐसे डिफाइन किया था kx. So we can say we have in a sense loose sense shown it that way, that unitary operators and Hermitian operators और उनकी definitions converge कर रही हैं for a particular case if we define things like this way. Because these, इसका जब टेलर एक्सपेंशन निकालते हैं, it is as if इसका exponential and exponential of this generator, ये momentum operator है, ठीक है. तो in that sense it becomes an argument that you can see it that way, satisfied by the eigen function this. अब हमारे पास ये है कि जो ये x है ना, x can go to plus infinity और x can go to, है ना, जब आप x को एक्सपेंड करते जाओगे तो वहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा. तो हमको बट वी हैव टू सी जो डी जीटा e to the power है ना, हमारे पास आयोटा k प्राइम जीटा, हाउ वी हैव टू डिफाइन जो जीटा हमारे पास है ऑपरेटर है, हाउ इट इज गोइंग टू सी ये कौन से वाले वैल्यूज लेंगे. तो cos ऑफ x अगर इसको एक्सपेंड करेंगे नहीं है ना एक्सपोनेंशियल, cos ऑफ kx प्लस आयोटा साइन kx, ठीक है. तो cos के कौन से वैल्यू जीरो आएंगे, कौन से वाले मैक्सिमम है, cos 0 is 1 है ना, sin 0 is equal to 0. तो इसके cos के वैल्यू लेंगे, इट विल वैरी बिटवीन ऐसे cos ऑफ पाई 2 पाई 3 पाई एंड n पाई, इसमें इसकी फंक्शंस विल लाई दिस फंक्शन. सो इन द सेंस जो psi x है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट और यूनिटरी ऑपरेटर है ना, जैसे psi ऑफ x प्लस a, जैसे cos ऑफ वैल्यू कब रिपीट होता है, पाई 2 पाई 3 पाई है ना, 4 पाई. सो इन द सेम सेंस इट्स a sort of displacement operator which repeats after a given पाई 2 पाई 3 पाई यहाँ से, और राइट हैंड साइड में माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यू कैन सी जो यूनिटरी ऑपरेटर की जो हमने डेफिनेशन दी थी, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू सॉर्ट ऑफ ए फंक्शन गेटिंग सम रिपीटेड साई, वेव फंक्शन का रिपीटेशन होता है पीरियडिकली इन दैट सेंस, ठीक है. सो अगर हम सो यू कैन राइट इट, सो आई जस्ट एंड इट. सो f of n of x will be e to the power iota k plus 2n pi and pi by zeta into x for any integer. zeta is शायद ये हमारा पास ये, तो इसको हमने फिर है ना एक्सपोनेंशियल, ये आएगा फिर ऐसे एक्सपोनेंशियल जब विल डू इट. तो इसी को हम और अगर आई राइट इट, so you can say it g of x is equal to n going to minus infinity plus infinity cn e to the power iota k prime plus 2n pi zeta by x is equal to e to the power iota k prime x minus infinity plus infinity cn e to the power nx, है ना. यहाँ n प्लस है, यहाँ खाली n है, यहाँ k प्लस है. दिस मीन्स पीरियडिकली है. दिस मीन्स g ऑफ x जो है ये रिपीट करता है आयोटा k प्राइम x u ऑफ x, और ये अगर हम अपनी लैंग्वेज में लेंगे u ऑफ x माइनस जीटा इज इक्वल टू u ऑफ x. सो इसी को हम अगर आप सॉलिड स्टेट्स में पढ़ेंगे, इसी को हम ब्लॉक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है.
क्रिस्टल में ना रिपीटेडली आयन है ना। सो इन द सेम वे उसकी एनालॉजी बेसिकली है यूनिटरी ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन वेव फंक्शन साई बाय सम डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। वो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर है, उसकी डी जीटा इज इक्वल टू यू जीटा माइनस एप्सिलॉन के बराबर हमने कहा, एंड यू फिर यू कैन रिपीट इट बाय सम फंक्शन। ठीक है, हाँ, विल स्टॉप।